Hello students, how are you all? I hope you all are fine and enjoying these videos. Also from learning from these videos. Myself Rajesh and we are learning 6th unit of science, life processes. In this unit, in our previous sessions, we have completed respiratory system. After the respiratory system, now we are going to learn the next topic, the next life process, which is known as a transportation system in human beings. So before entering into this topic, we have to understand the deep meaning of transportation system. And along with the transportation system, what is the need of transportation system? We have to understand this thing. If you want to understand these two things, then it will be easy for you if you are recall the previous two life process, which is digestion process and respiration process. In a digestion process, the food is converting into energy, but not directly. The food is our basic source of energy. We are eating food for different nutrition values, and nutrition values maintains our body. Nutrition values gives energy. Nutrition gives energy, different vitamins, minerals, different components of food. By those components of food, we can grow, we can repair damaged part of body, we can absorb, we can get energy for performing different activities. So nutrition is essential, but we are not getting nutrition directly from the food. Certain reactions, certain processes are required to absorb the energy from the nutrition. So in a digestion process, we understood how we are converting the food into digested food. जो फूड है उसको डाइजेस्टेड फूड में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस हमने पूरा डाइजेशन में देखा, उसमें from the small intestine we are absorbing digested food, just like amino acids. After the digestion of protein converting into amino acids, fats are converting into fatty acids and glycerol. Carbohydrates are converting into starch and simple sugar means glucose is the source of energy for a human body. हमारी बॉडी को जो एनर्जी मिलता है वो कहां से मिलता है? ग्लूकोज में से मिलता है, and different minerals and vitamins. So from the small intestine, जो हमारा small intestine है, वहां से क्या होगा? From the small intestine, this digested food will absorbed by the villi. Villi is a finger-like structure. It is an extensive network of blood vessels which provides a large surface area for better absorption of digested food. तो यहाँ से ये फूड तो डाइजेस्ट हो गया. अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन को ही डाइजेस्टेड फूड की रिक्वायरमेंट है. Energy and nutrition required in each and every cell of the body. Nutrition required to each and every organ. जैसे आपने काफी बार अपने प्रीवियस क्लासेस और प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में ये चीज सुनी होगी कि विटामिन सी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, विटामिन ए आई साइट को स्ट्रॉन्ग करता है, विटामिन सी की वजह से ये चीज होती है, व्हाट एवर इट इज, जो भी ये डिफिशियंसी होती है विटामिन और मिनरल्स की वजह से, ये सारी चीजें यू ऑलरेडी लर्न इन योर प्रीवियस स्टैंडर्ड्स. बट व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? किन वजह से ये चीज होती है? दो तरीके के हैं. एक ही, वैसे तो अगर देखा जाए, सोचा जाए तो एक ही चीज है कि डेफिशिएंसी यानी कि क्या, तो क्या आपके डाइट में वो चीज है ही. चलो मान लो कि आपके डाइट में वो चीज है, तो वो चीज पहुंचनी तो चाहिए ना, तो पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए. जैसे मैं अभी आपके सामने बात कर रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग, आई एम टीचिंग इन फ्रंट ऑफ यू. तो फॉर ऑल दिस वी रिक्वायर्ड एनर्जी. मुझे एनर्जी चाहिए, बट ग्लूकोज तो बना था कहां पर? द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स टेकिंग प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन. कोई भी फूड हो उसका कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है. फ्रॉम दिस स्मॉल इंटेस्टाइन आई रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर स्पीकिंग. लैरिंग्स को एनर्जी चाहिए बोलने के लिए. आई एम
गेटिंग द एनर्जी, आई एम गेटिंग द ग्लूकोज फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, मुझे वहां से ये चीज मिल रही है, तो वहां से यहाँ पर आने के लिए कोई रोड रास्ता तो होगा ना, पाथ तो होगा ना, सर्टेन पाथ्स. सो आवर बॉडी रिक्वायर्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स टू ट्रांसपोर्ट ईच एंड एवरीथिंग. जैसे डेवलप और डेवलपिंग कंट्री, कोई भी डेवलपिंग कंट्री हो, उसे डेवलप्ड होने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए. तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? बिल्डिंग्स. जैसे हमारे बॉडी में क्या है? ऑर्गन्स. अनदर थिंग, ये ऑर्गन्स हमारी फैक्ट्रीज हैं जो अलग अलग चीजें मेंटेन करती है, प्रोड्यूस करती है. तो वहां पर रॉ मटेरियल पहुंचाने के लिए रोड रास्ते चाहिए, विच आर मस्क्यूलर ट्यूब्स. और उसे मेंटेन करने के लिए सर्टेन सिस्टम्स आर रिक्वायर्ड. मेंटेन करने के लिए क्यों? कभी कोई चीज डैमेज हो गई तो पता कैसे चलेगा? तो कोई सिस्टम अगर उसे मेंटेन करती होगी, जैसे कि नर्व सिस्टम है, कोई सिस्टम उसे अगर मेंटेन करती होगी तो ही ये चीज पॉसिबल है. आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी. सो टू ट्रांसपोर्ट, जैसे मैं अगर रेस्पिरेशन सिस्टम की बात करूं, चलिए स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर द डाइजेस्टेड फूड आर एब्सॉर्ब्ड बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज कॉल्ड असिमिलेशन. जो डाइजेस्टेड फूड है वहां से स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्सॉर्ब होता है. क्या होता है? एब्सॉर्ब होता है, उसे असिमिलेशन कहते हैं. विद द हेल्प ऑफ बिल्ली, यू कैन आल्सो से बिल्लस. From the small intestine, the digestion of food is taking place. It is called assimilation. Digested food is reaching in different cells of the human body, in different cells. तो वहां तक ये जो digested food पहुंचता है, digested food पहुंचने के बाद भी digested food not providing us direct energy, वो हमें direct energy provide नहीं करते. Why they are not providing direct energy? Because to decompose, we have to decompose the glucose to absorb the energy, which is called internal respiration system. In our previous session, we have completed this topic. जब भी ग्लूकोज वहां पर सेल में पहुंचता है तो उसे ब्रेक डाउन करना पड़ता है. हम ब्रेक डाउन करेंगे, मैं अभी ह्यूमन की बात कर रहा हूँ, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में नहीं जाएंगे. तो उसे जब हम ब्रेक डाउन करें तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है. कार्बन डाइऑक्साइड की कोई भी रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी में नहीं है. देयर इज नो एनी रिक्वायरमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ह्यूमन बॉडी, पर्टिकुलरली इन एनी लाइफ प्रोसेस. कोई भी लाइफ प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट नहीं है. यस, वाटर इज रिक्वायर्ड. हमारे बॉडी का ज्यादातर मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर. हमारे बॉडी में बहुत वाटर है. विदाउट वाटर वी कैन नॉट सर्वाइव. साथ में एनर्जी रिलीज होता है. That energy in the cell stores as a ATP, which is called adenosine triphosphate. और वो भी क्या होता है? स्टोर एज ए ATP होता है. ऑलरेडी हमारे बॉडी में ATP होता है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फास्फोरस. और एनर्जी जो रिएक्शन में रिलीज हुई है, रेस्पिरेशन में रिलीज हुई है, वो एनर्जी ADP, फास्फोरस तीनों एक साथ रिएक्ट करते हैं और ATP बन जाता है. ATP स्टोर्स एनर्जी. ATP is the storage of energy, particularly in mitochondria. So ये ग्लूकोज के ब्रेकिंग डाउन के लिए, ग्लूकोज के ब्रेक डाउन के लिए भी क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, जिसे एरोबिक रेस्पिरेशन सिस्टम कहते हैं. तो ये ऑक्सीजन अलग अलग सेल में पहुंचेगा कैसे? सम व्हीकल्स आर रिक्वायर्ड व्हिच आर नोन एज अ कैरियर्स, व्हिच आर नोन एज अ RBC, रेड ब्लड सेल्स. व्हीकल चाहिए ना, जैसे राजकोट से मोरबी जाना हो, या इफ यू वांट टू ट्रैवल Morbi to Ahmedabad, या if you want to travel Rajkot to America, whatever it is. तो कोई व्हीकल चाहिए पर्टिकुलर, या फिर बाई वॉक आप चल सकते हो, उसमें वो डेवलप मीन्स सम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग ब्लड, फॉर ट्रांसपोर्टिंग मिनरल्स, फॉर ट्रांसपोर्टिंग डिफरेंट न्यूट्रिशन वैल्यूज, for transporting oxygen, for transporting waste material. So certain systems, certain tube-like structures and certain connective tissues, कोई ऐसा carriers, connective tissues यानी carriers चाहिए जिससे हम पूरे बॉडी में जो भी required things है उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट कर सके. This was the importance of a transportation system. अभी तक transportation system शुरू नहीं किया है. I have not started yet. तो
लेकिन कोई भी चीज समझने से पहले व्हाई एंड व्हाट, ये दो अगर क्वेश्चन आप पूछोगे तो कोई भी चीज आपको याद रह जाएगी. सो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड व्हाई इट इज रिक्वायर्ड? These two questions I explained now. So now I am going to teach you now what is the transportation system and human body, how the transportation system is running, how the transportation system is works. So the transportation system, the blood transports oxygen, food, waste in our body by being a fluid connective tissue. By blood being a fluid connective tissue. ये जो ब्लड है ना, ब्लड ये हमारे बॉडी में एक कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर जो चीज पहुंचे कनेक्ट करे उसे कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं. यू ऑलरेडी स्टडीड दिस पॉइंट इन योर 9th स्टैंडर्ड. ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, इज यू ऑलरेडी स्टडीड इन योर प्रीवियस स्टैंडर्ड. सो बाय द ब्लड वी कैन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, फूड एंड वेस्ट इन आवर बॉडीज. वेस्ट आर हार्मफुल, वेस्ट हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, उनको रिमूव तो करना ही पड़ेगा. वी ऑलरेडी स्टडीड दिस थिंग इन डाइजेशन प्रोसेस. सो ब्लड कंसिस्ट्स ऑफ अ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा इन व्हिच द सेल्स आर सस्पेंडेड. ब्लड का पूरा एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ब्लड के स्ट्रक्चर में एक फ्लूइड मीडियम है जिसका नाम है प्लाज्मा. प्लाज्मा तो आप सबने बहुत सुना होगा कोरोना में. सबसे पहली जो एफिशिएंट थेरेपी निकली थी कोरोना को ट्रीट करने के लिए वो थी प्लाज्मा. अगर कोई भी बंदे को कोरोना हो जाता है और उसके बाद वो रिकवर कर लेता है तो उसके अंदर एक इम्यून सिस्टम जनरेट हो चुका होता है, मतलब जो एफिशिएंट होता है नॉर्मल पर्सन की कंपैरिजन में. तो अगर वो ब्लड में से अपने प्लाज्मा सेपरेट करके किसी और को डोनेट करे तो उसका इम्यून सिस्टम भी मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है. लेकिन आजकल तो गवर्नमेंट ने ये थेरेपी को निकाल दिया है प्लाज्मा डोनेशन, क्योंकि इतना एफिशिएंट नहीं था. कुछ केसेस में हर एक थेरेपी की कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होती है, केस के ऊपर से उस थेरेपी को यूज किया जा सकता है. अभी गवर्नमेंट ये कह रही है कि प्लाज्मा थेरेपी इतना यूजफुल नहीं है, बट डिपेंड्स ऑन पेशेंट. पेशेंट कैसा है उस चीज के ऊपर डिपेंड करती है ये चीज. सो द fluid medium are known as plasma. Plasma है वो fluid medium है in a cells which are suspended. ज्यादातर क्रीम कलर के होते हैं. Plasma transports food, carbon dioxide, nitrogenous waste in dissolved form. ये जो प्लाज्मा है ये फूड को यानी कि डाइजेस्टेड फूड को, मैंने जो अभी कहा अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल या फिर स्टार्च, सिंपल शुगर मींस ग्लूकोज, ये सारी चीजें प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करता है एज ए डाइजेस्टेड फूड. फिर कार्बन डाइऑक्साइड है इन आवर रेस्पिरेशन सिस्टम. कार्बन डाइऑक्साइड इज लिबरेटिंग, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है. फिर नाइट्रोजनस वेस्ट, ये जितने भी केमिकल बायोकेमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी में होते हैं उनके बाई प्रोडक्ट भी होते हैं. नाइट्रोजनस वेस्ट यानी कि वो नाइट्रोजन कंपाउंड को कंटेन करते हैं. क्यों नाइट्रोजनस वेस्ट? बिकॉज द प्रोटीन इज अ कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो उसमें भी प्रोटीन में भी क्या होता है? नाइट्रोजन होता है. तो जैसे कि मैं बात कहूँ यूरिया है, हमारे यूरिन में निकलता है, तो वो नाइट्रोजनस वेस्ट है. यूरिया आपने सुना होगा, यूरिया. फिर एमोनिया भी होता है हमारे यूरिन में, तो ये नाइट्रोजनस कंपाउंड है. एमोनिया का केमिकल फॉर्मूला है NH3. इस तरीके से ये नाइट्रोजनस वेस्ट भी हमारे बॉडी से निकलता है. ऑक्सीजन इज कैरिड आउट बाय रेड ब्लड सेल्स. मिनरल्स और सॉल्ट्स आल्सो ट्रांसपोर्ट बाय द ब्लड. ये जो ऑक्सीजन है ये भी हमारे ब्लड के द्वारा ही कैरी किया जाता है, पर्टिकुलरली ब्लड के द्वारा, यानी कि ब्लड में रेड ब्लड सेल्स होते हैं. उसमें रेड ब्लड सेल्स में एक पार्ट है विच इज नोन एज अ हीमोग्लोबिन. तो हीमोग्लोबिन से ये जितने भी मतलब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है, इन आवर प्रीवियस वीडियो आई शोन दिस थिंग विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. आई शोन दिस थिंग. तो उसमें क्या होता है कि ये जितने भी रेड ब्लड सेल्स है उसमें पर्टिकुलरली हीमोग्लोबिन होते हैं. हीमोग्लोबिन ऐसा एलिमेंट है, ऐसे पिगमेंट है, they have a high affinity towards the oxygen. They are the basic carriers of the oxygen. वो जैसे ही लंग्स के अंदर ऑक्सीजन एलोवेल्यू के जरिए आता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज हो जाता है एलोवेल्यू के पास, वहां पर सरफेस के ऊपर, तो वो ऑक्सीजन जैसे ही ब्लड के अंदर एंटर होगा ना तो
हीमोग्लोबिन उसके साथ स्टिक हो जाएंगे और उसको कैरी करेंगे और किसी सेल के पास जाके उनको क्या करेंगे, लिबरेट कर देंगे वहां पर कि भाई आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है तो आप ले लीजिए। फिर होगा रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, वो ऑक्सीजन ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाएगा, वो डिसोल्व्ड फॉर्म में जाएगा, किसके जरिए, ब्लड के अंदर डिसोल्व हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और निकल जाएगा बाहर, एनर्जी रिलीज होगी और वाटर रिलीज होगा। सो ऑक्सीजन इज carried out by red blood cells. To transport all these things, we require pumping organ to be push blood around the body. ये सबसे मेन की वर्ड है यहाँ के पूरे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को समझने के लिए। ये की वर्ड्स है कि भाई हमें इन व्हाई और व्हाट पता चल गया, वी नो व्हाई एंड व्हाट, बट हाउ दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। ये तीसरा क्वेश्चन, पहले व्हाई और व्हाट आता है, फिर उसके बाद हाउ आता है। भैया समझ गया कि भाई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जरूरी है, ये करने के लिए, वो करने के लिए, फलाना टिकला करने के लिए, बट हाउ द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज टेकिंग प्लेस, ये किस तरीके से होता है, ये चीज हमें समझनी है। सो इन सिंपल वर्ड्स, इन वेरी सिंपल वर्ड्स, आप में से काफी सारे लोग फार्मर्स भी होंगे, आपने देखा होगा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम आता है, अलग अलग जहां पर प्लांट्स होते हैं वहीं पर पानी पहुंचता है। यू ऑलरेडी स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लासेस 7th और 8th आल्सो। एंड पर्टिकुलरली जब भी आपको एक चीज दूसरी जगह पर पहुंचानी हो, तो जैसे कैरियर से, मैंने जैसे कहा बस, व्हीकल्स लाइक दिस, वैसे ही अगर पानी को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना हो तो हम क्या करते हैं, आपके घर में बॉटम टैंक भी होगी, ओवरहेड टैंक भी होगी, तो बॉटम टैंक से ओवरहेड टैंक में पानी पहुंचाते हैं। So pump is required to transport water from bottom to top, just like this, to each and every organ. To supply the blood to each and every organ, we require pump. And in human body, हमारी बॉडी में pump is known as a heart. हार्ट इज द पंप ऑफ ह्यूमन्स बॉडी। जो हार्ट है, देखिए, ब्लड इज अ कनेक्टिव फ्लूइड टिश्यू, ब्लड इज अ कनेक्टिव फ्लूइड टिश्यू, ब्लड ट्रांसपोर्ट्स फूड, वेस्ट, मिनरल्स, vitamins, each and everything. And for transporting the blood, for supply the blood, what we required? We required a particular pump to transport, to supply the blood. तो वो supply blood की करने के लिए to each and every organ, what is we have? We have heart in human body. Heart is the pump of human body which supplies the blood to each and every organ. अगर मैं particularly बात करूँ आपको heart की, तो in our next session we will learn the structure of heart, the process of heart, but heart is in a left side in human body, just like fist. ये fist के जैसा इतना होता है, मुट्ठी के जितना, इतना ही होता है। जो हार्ट का साइज है वो इतना होता है। हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स। हार्ट को 4 वेंट्रिकल में डिवाइड किया जाता है, हर एक पार्ट का अलग अलग काम है। 4 पार्ट में हार्ट को क्यों डिवाइड किया जाता है? Because we are dealing with pure and impure blood. Why we are dealing with pure and impure blood? Because whenever we are sending the pure blood from the lungs, whenever we are sending pure blood from the lungs to each and every organ, the respiration process is taking place in a cell. After the respiration process, carbon dioxide is produced. So to exhale the carbon dioxide from the body, the carbon dioxide is dissolved in the blood. Carbon dioxide क्या करता है? Blood के अंदर dissolve हो जाता है और वही blood वापस that blood is coming into the lungs again, and purification process at the alveolar sac is taking place. वहां पर exchange हो जाता है, उसके बाद तो वो exhale हो जाता है, but this process requires pumping. This process requires pressure. And the pressure of blood is called blood pressure. The pressure of blood inside human body is called blood pressure. ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है ना, जैसा कि मैंने कहा,
To transport all these things, we require pumping organ to push blood around the body, a network of tubes to reach all the tissue, and a system to maintain and ensuring the damage. एक ट्यूब-like muscular tube-like structure भी required along with muscular structure. जैसे मोटर के साइड उसके पाइप लगे हुए होते हैं पानी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, just like this. To transport the blood, we require tube-like structure which are known as, there are two types of tube in human body. I will tell you the particular uses of this tube, particular functions of this tube, but now just I am saying artery and vein. Artery and vein, there are two types of tubes are present in a human. Artery और tubes दो चीजें ह्यूमन में प्रेजेंट है. तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वहां से प्योर और इम्प्योर ब्लड हार्ट के जरिए ईच एंड एवरी ऑर्गन सप्लाई होता है. सप्लाई होने के बाद जो भी रेस्पिरेशन प्रोसेस हो जाता है उसके बाद ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को वापस वो लंग्स तक पहुंचाता है. सो फॉर दिस फंक्शन वी रिक्वायर हार्ट. ये हार्ट को संभालना बहुत जरूरी है. विदाउट हार्ट वी कैन नॉट सर्वाइव. हार्ट में काफी सारे प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं. काफी बार आपने देखा होगा कि हार्ट अटैक पड़ता है लोगों को. तो ये हार्ट अटैक क्या है, अगर ये चीज को जानना है तो एक सिंपल तरीके से समझ सकते हो. हार्ट अटैक यानी कि कुछ नहीं, जब आपका हार्ट सडनली वर्क करना बंद कर दे तो ये कुछ नहीं है, हार्ट अटैक है. आपका हार्ट अटैक मतलब काम करना बंद कब कर देगा, जब उसको प्रॉपर सफिशिएंट तरीके से ब्लड का सप्लाई नहीं मिल रहा होगा, तब आपकी आर्टरी या वेन कोलैप्स हो गई होगी, तब तो वो कोलैप्स हो जाती है. तो उसको मेंटेन करना होता है, इंश्योर करना होता है कि भाई कहीं पर कुछ डैमेज है. Are you getting my point? There is a something mechanism of feed. तो कुछ फीडबैक मिले ऐसा मैकेनिज्म भी हमारे बॉडी में है. जैसे नर्व सिस्टम में अगर आपको कह दूं, कहीं पर आप देख रहे हो नीचे कहीं आग वाग है या नीचे कहीं कांटा है, तो क्या आप पैर रख देते हो? नहीं रखते हो. और अगर गलती से पैर रख दे तो तुरंत वापस ले लोगे अगर थोड़ा सा भी लगे भाई नीचे कांटा है. तो इसको फीडबैक सिस्टम कहते हैं. वी हैव अनदर चैप्टर इन डिटेल फॉर दिस, बट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द हार्ट. तो हार्ट को मेंटेन करना, हेल्दी मेंटेन करना बहुत जरूरी है हमारी बॉडी में. उसके लिए प्रॉपर डाइट चाहिए, प्रॉपर एक्सरसाइजेस चाहिए. जैसे अभी लंग्स की बात करूं तो कोरोना था, वो लंग्स की बीमारी थी जिसमें लंग्स फाइब्रोसिस होता है. चाहे माइल्ड हो, सीवियर हो या कोई भी पेशेंट हो, उनके लंग्स सिकुड़ जाते हैं. तो अगर उनके लंग्स को प्रॉपर करना है तो 30 to 40 सेकेंड्स जो हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, उसको होल्ड करना चाहिए ताकि वो लंग्स ऐसे है वो एक्सपांड हो. क्या हो? वो एक्सपांड हो. और कंटिन्यूसली अगर ये चीज करेंगे तो विदाउट मेडिसिन हमारे लंग्स है वो एक्सपांड हो जाएंगे. जो कोरोना की वजह से हुआ है वो चीज वापस जो पहले जैसी थी वो हो जाएगी. So I will teach you guys the mechanism of heart in our next session, and also the transport system, the transportation system in heart, how the blood is transporting to each and every organ, and what is the working process of heart, and what type of question can be asked from this portion for 1 to 4 marks. I will teach you in the next session. I hope ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी. Why or what for a transportation system. Maybe you understood the deep meaning of this. Thank you students, thank you class. We will learn heart, the working of heart in our next session.